express my view that I will speak on the corruption in district judiciary. There is written code of conduct. हमारे जजेस के लिए हाई कोर्ट के ये रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्ट, वो रिटर्न है। उसमें जब जो ये जज की सर्विस ज्वाइन करता है, देन वी हैव टू टेक oath to uplift the judiciary or the untouchability. There are certain provisions that taking gratification in case or kind is misconduct and liable to be punished by disciplinary authority, and his service may be terminated. If his conduct is in grievous nature, or if the judicial officer has committed any offense under the penal law, then FIR can also be lodged by Vigilance Department of higher judiciary. There is Register of Vigilance in Gujarat High Court as in various high courts, who receives complaints against judges of lower courts with respect to taking gratification by cash or in kind, and inquire into the matter, and if it is found some substance in complaint against certain judicial officer, then disciplinary action can be taken. But I have seen some judicial officer who is taking gratification in case. Corruption in leather currency is also one kind of conduct. This is various. आप समझते हैं लेदर करेंसी किसको बोलते हैं, वो भी मैंने देखा है. Corruption in every public service or employment, including political level, is everywhere. Judiciary is not exception in it. I have seen so many judges in my life that they are corrupt. There are various forms of corruption. Corruption by taking monetary benefit from litigant or lawyer in favor of cases is also misconduct and liable to be punished. Taking any gift from litigant or lawyer is also corruption. There is leather currency corruption. I have seen so many judges who satisfy their sexual desire from ladies who came before the court for maintenance under the provisions of CRPC 125 against her husband to take maintenance. I have seen so many judges who take sexual benefits from lady litigants. If any complaint is made, then he is to be dealt with department. But in some cases, the lady litigants does not dare to file any complaint against such erring judges. There are certain judges who attends various private functions of lawyers as well as litigants, or taking gift, whose cases is pending before his court, is one kind of misconduct, or it's said to be misconduct, or taking corruption. To take a sexual benefit from lady advocate or subordinate lady staff or lower judicial officer is also one kind of misconduct. I have seen so many judges who are taking some benefits, or there are some ladies also who have some intimacy with higher officers for getting promotion or any career
benefit. Some some judges who believes in casteism, belief in casteism reflects in their judgments as they are biased towards certain community. This is very serious. There are certain judges who are biased on caste and creed. During Corona period, during Corona period, I have studied so many judgments of Special Courts of Atrocity Act. आप सब जानते हैं एट्रोसिटी एक्ट क्या है? Atrocity against SC and ST is punishable under law. During Corona period, I have found find out more than 25 judgments of certain special judges of Gujarat. They are acquitted the accused persons by finding in their judgment that the victims have filed false case just to take monetary benefit or relief from the social department of government. Though such cases were genuine, not only that, the judges have passed certain orders to recover the amount of relief taken from the government from minor victim girls or victim of rape, though they were not at fault. I have various public prosecutors. आप प्रोसिक्यूटर में के जानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट के फेवर वाले होते हैं, जो सत्ता पर होते हैं ना, वो सब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन साइड में प्रोसिक्यूट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेटमेंट और कंप्लेनर. The various public prosecutors are favoring the accused persons by for their personal benefits. I have tried various criminal cases, including Cesar's cases of murder and rape, etc., etc. The public prosecutor who conducts the cases on behalf of the state, that on behalf of the complainant or victims, are having poor knowledge of law and prosecution as well as procedural law, because they are taken from certain community or they believe in certain ism. There is no morality in so many judges. They are not moral. They brand themselves as they are honest. To brand himself as honest is one kind of misconduct. It is presumed that every public servant, including judges, are bound to be honest. I have myself filed a PI before High Court of Gujarat against Legal Department, Director of Prosecution, and Home Department against certain judgments in which the Legal Department or Director of Prosecution have not preferred appeals before the High Court against some erring judgments. Some judges who gets intimacy with lady advocate or litigants or staff, and thereafter some peoples files any complaint before the High Court against such judges, then he is liable to be
dealt with the disciplinary action. But if any judge and lady certifies this that illegal relation by way of marriage which is there, then no disciplinary action can be taken. I have seen so many judges. We we have an example that Justice K. Chandru from Tamil Nadu, Chennai, during his career as High Court judge, has given so many judgments by way of delivering speedy justice in comparison to other judges. So there are various kind of corruption as well as corruption in judiciary. I have myself experienced being scheduled caste judge that some of the judicial officers believes in untouchability, not by physical untouchability, but they but mental untouchability. It is very dangerous in this field of judiciary. I would like to quote some observations made by some philosophers with respect to quality and excellency of judges. Plato, Greek philosopher, long back gave the concept of a philosopher king. The judges are under our constitution have to perform the role of philosopher king. Lord Wright said that a good judge is one who is the master, not the slave of the cases. According to Daniel Webster, there is no character on earth more elevated and more than that of a learned and upright judge. I also express my view that judges are described as hermits, साधु. उसका जीवन साधु जैसा होना चाहिए. वो पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि ये जज है. Some judges who is insulting litigants as well as lawyers who are senior. Judges have to उसको जरा सबको रिस्पेक्ट से उसको सुनना चाहिए. उसका केस क्या है, ऑपोजिट साइड का केस है क्या है. Because some judges who have taken some benefits from one party, he also favors against other party. I have seen so many judges. Judges are described as hermits. They have to live and believe like hermits who have no desire or aspirants, having said it through penance. The mission is to supply light and not heat. એને પ્રકાશ આપવાનો છે, એને ગરમી આપવાની નથી. I have also, in every particular, the judicial officer's conduct should be above reproach. He should be conscious, courteous, studious, patient, punctual, just, impartial, fearless of public glamour, regardless of public praise, and indifferent of private, political, or partisan influences. He should not allow officers or private interest, affairs, or his private interest to interfere with the prompt and proper performance of judicial official duty. Nor should be admitted to the office for purpose of advancing his personal ambition and increasing his popularity. The judges, some judges, उसको जो मीडिया में रहना अच्छा लगता है, वो न्यूज़पेपर में आया करे, वो भाई तो ये सब सोशल मीडिया है, उसकी पॉपुलैरिटी, जस्ट टू गेट पॉपुलैरिटी, वो उसका ऐसा वर्डिक्ट देता है, वो भी वन काइंड ऑफ मिसकट है. So it is my
this is my thinking, and I have various kind of experiences in my judicial career. We cannot be describe certain aspects. Uh, Thank you, Praveen Bhai, and all the respected persons to give me a chance to express my view on this subject. Thank you very much. शिवानंद भाई, जी या प्रवीण एक जी, मिनट बोलता धन्यवाद हूँ थोड़ा सा। धन्यवाद या राठौर साहब। एडिशनल रिटायर्ड एडिशनल जज हमारे बीच में थोड़ा उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। बताइए प्रवीण जी प्लीज। ये भगवान जी भाई को बुलाना है, वो कहीं क्या दूसरा काम है क्या पता नहीं, उनका ठीक है, फोन आया। तो या भगवान जी भाई रयानी साहब हमारे बीच में हैं, बहुत सीनियर हमारे। एक उनके बारे में बहुत सारी जानकारी तो प्रवीण जी ने आपको दे ही दी है, आप सब अवगत हुए हैं। और उनका हार्दिक स्वागत है, चेयरमैन है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के। और बॉम्बे में जैसा कि बताया गया वो PIL मैन के तौर पे जाने जाते हैं तो अपने अनुभव वो यहाँ पे शेयर करेंगे PIL मैन साहब। तो माननीय भगवान जी भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? Just upright, everything is fine. First class. ओके जी। Hello. जी जी बिल्कुल। Should I start? हमारी सबकी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और काम करते रहें देश के लिए। Thank you very much. जी Hello. हाँ, आप आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। Just हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपकी भी आ रही है मुझे। जी हाँ, just at the outset, प्रवीण भाई ने बताया फॉर्मर चीफ जस्टिस गोगोई का नाम, जिसके सामने भ्रष्टाचार ये हुआ था कि उसकी एक क्लर्क थी उसकी पर्सनल ऑफिस में। हेलो, इट्स ब्लॉक्ड अगेन। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अभी बिकॉज दैट लेडी went to the Supreme Court again against a Gogoi, who was her boss as the Chief Justice of India at that time. और उसमें क्या आते, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दी 3 जजेस की, उसमें खुद ही बैठ गए वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पैनल, और जो पिटीशन दायर किया था लेडी ने, उसको डिसमिस कर दिया। द पैनल ने इटसेल्फ डिसमिस किया, इट डिडंट गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द हियरिंग। ऐसा ही जुडिशरी में करप्शन होता ही रहता है। प्रशांत भूषण की बात करें तो उसने एक सिंपल ट्वीट किया था एलिजिंग समथिंग ऑन सम पर्टिकुलर जज, और सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कंटेम्प्ट लगा दिया उनके ऊपर। वो तारीख पे तारीख, तारीख के तारीख चलता ही रहा 6 महीने तक, बिकॉज प्रशांत भूषण इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उसको मॉनिटर करता रहा। उसका एवरी इंटरिम जज आई गॉट इट कलेक्टेड इन माय फाइल, and ultimately what happened, because this man was, Prashant Bhushan was firm, Supreme Court asked for his apology. The person says, Supreme Prashant Bhushan said that I will never tender my apology, I will prefer to go to jail. That determination led to
ultimate judgment on this contempt on प्रशांत भूषण क्या हुआ? अल्टीमेटली उसको फाइन तो करना था, पनिशमेंट तो करना ही था। क्या फाइन किया? सुप्रीम कोर्ट ने टोकन ₹1 का फाइन किया इसके ऊपर। इट इज ए मॉकरी ऑफ द जुडिशरी। एवरी country when the judgment आया, the whole community, whole nation was laughing. I congratulated Prashant. You have ultimately, it is as good as that you won. You have won against Supreme Court. He was a great judge, very law minister of the country. इन्होंने, when he was practicing in the Supreme Court, he alleged about half a dozen Supreme Court judges, chief justices were corrupt. उनके ऊपर भी सुओ मोटो कंटेम्प्ट लगा दिया गया। बरसों तक चला, महीनों तक। उसके बाद तो उसका देहांत भी हो गया। उसके बाद एक वारसा जिसको बोलते हैं, हेरिटेज, इनहेरिटेड, to defend his own father, he has to continue but in that case, ultimately what happened? In absentia, posthumously, एक जैन के ऊपर 1.25 लाख, 1.25 लाख का जुर्माना लगा दिया। वो प्रशांत को भरना पड़ा। तो जुडिशरी करप्शन की बात जो करते हैं, अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में से 15 करोड़ रुपये निकले और उसका भी पैनल लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन्वेस्टिगेशन हुआ है सीबीआई से, पर अल्टीमेटली इम्पीचमेंट पर जाएगा। मगर इम्पीचमेंट का हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है हिंदुस्तान में। एक जज के ऊपर, रामस्वामी करके, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनके ऊपर इम्पीचमेंट का कार्रवाई पार्लियामेंट में गया। और पार्लियामेंट में क्या हुआ? एट दैट टाइम our former Prime Minister, Mr. Rao, 1993, he was the President of Congress. He sent a whip to all the parliamentarians, his own Congress parliamentarian, that don't vote on impeachment. और रामस्वामी बच गए। ये काफ़ी बात हो रही है मीडिया में करप्शन के बारे में। अभी एक फ्यू मिनट्स के लिए आरटीआई के लिए मैं बोलता हूँ कि
I'm a civil engineer, not an advocate. I go on filing public interest litigations in High Court as well as Supreme Court, as told to us by Praveen Patel. Over 100 public interest litigation I have filed. उसमें जितना जीता उससे ज़्यादा हारा है. मैं जितना जीता उसमें लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हुआ है. तो RTI is the basic, क्योंकि whatever I file the PIL, the basis is उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और RTI का जो जवाब आता है वो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है. तो मैं तो मैक्सिमम, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑफ माय PIL file in higher court is based on RTI. So maximum RTI. मगर क्या हुआ है, RTI में भी इसे प्रावधान है 30-35 दिन में उसका जवाब देना पड़ता है. इट्स ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a that one has the right to know what happens before the authority, competent authorities or that is government, BMC, banks, etc., nationalized bank, etc. They are required to give reply to the applicant whatever he has requested or demanded. But there are also the riders on such a cases. It can be denied. Maybe something like military, something like personal trade and business, etc. तो इसके लिए उसमें भी तकलीफ ये है कि at all level of information commissioner, maybe a state level, maybe a central level, there are hundreds of vacancies. And it takes, in one of my cases also, because first information officer, whatever he is sending the reply, I have to file if I am not satisfied the first appeal. That goes to the particular officer from whom I have demanded this information. उसका हियरिंग होता है, हमें जाना पड़ता है हियरिंग के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए. उसके बाद उसका ऑर्डर आता है. The order, if it is not satisfactory, I have to file the second appeal. And even second appeal is also not satisfactory, I have to go to National Commission. And these are the, it doesn't matter, it should be as per the intent of the Act, RTI Act 2005. It should be over within 4-6 months, but it takes years and years. It's not never completed. One instance is, I remember, A.P. Shah, Justice A.P. Shah was the Chief Justice of Delhi High Court, and he ruled also. Somebody like me or somebody like Praveen Patel or Rathod or something went to Supreme Court and asked for some information. And Supreme Court refused that information. And the person went to
High Court, Delhi Justice A.P. Shah, he ruled that Supreme Court has to provide the information whatever the applicant has demanded. But Supreme Court dismissed that order itself for Justice A.P. Shah. This is what there are many challenges in this RTI also, but by and large, I have to say that in 90% cases, it is the information is authentic, is true, and it can be used to satisfy the applicant itself as well as whatever he wants to move to the state authorities or ultimately to the court. Thank you, Praveen Bhai. This is my conclusion of my short speech. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Speakers. शिवानंद भाई, I will take 1 minute only. जी Yeah, भगवान जी भाई, आपने रामास्वामी जी के बारे में बात किया, जस्टिस वी रामास्वामी. हाँ, This happened in 1993. An impeachment motion was also moved, but it failed. And the failed was because the politician didn't wanted to impeach him. that is what I So, say. yes, true. Huh. But I am saying, adding to that, why it happened like that? And till date, since independence, not a single judge has been removed by impeachment. This is the record of our. मुझे This is the record of our parliament. let me be very frank. हम देश भर में under the aegis of a Forum for Fast Justice हम सेमिनार करते रहते हैं जुडिशल रिफॉर्म के लिए. अपना नेक्स्ट अगले शनिवार को सूरत में 100, 150, 200 लोग इकट्ठे होते हैं. 7-8 स्पीकर्स होते हैं और इधर भी बात करते हैं. हम हमारे स्पीकर्स बात करते करते जाते हैं. हम 20 साल से मूवमेंट चला रहे हैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की. अभी तक हमको सफलता नहीं मिली. और आपको याद होगा स्वतंत्रता की आज़ादी 1857 में शुरू हुई. वो टाइम ब्रिटिशर्स थे, उन्हें उसको दबा दिया. मगर 90 इयर्स के बाद 1947 में हमको आज़ादी मिली. तो इसके हम आशावादी हैं. आप सब लोग जहाँ तक उतर नहीं आएंगे हमारे साथ, वहाँ तक कुछ होने वाला नहीं है. फिर भी जैसा विवेकानंद जी ने कहा, he who attempts is better than he who never attempts. Thank you very much. नमस्कार सर. शिवानंद भाई. जी प्रवीण जी वेंकटरामन जी बचे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद रयानी साहब को. और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर किए और सबको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया. उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सबको अपने प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए. सफलताएं और असफलताएं अपने स्थान पर रहती हैं, लेकिन प्रयास में आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए. धन्यवाद माननीय भगवान जी साहब, दयानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो आगे बढ़ें कार्यक्रम में. और जिस प्रकार से प्रवीण जी ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि हम श्री एम वेंकटरामन जी को यहाँ पर इनवाइट करें, जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के
ऑनरेरी ट्रस्टी हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम सब मिल करके ही कर रहे हैं। सब संगठन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली ही है। तो वेंकट रमन साहब सुन पा रहे हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। प्रवीण जी, हमें लगता है कि वेंकट रमन जी जुड़े जुड़े नहीं है क्या? थोड़ा सा आप बात करेंगे उनसे, नंबर है तो। कर लेता हूँ, चलिए। करूंगा तो हाँ। फिर ये प्रॉब्लम होगा फोन का। मैं नंबर दूं हम्म। आपको? ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तब तक आगे बढ़ें और कुछ क्या क्वेश्चन ले या लें कि आगे हमारे स्पीकर से हमको। नहीं, ये ग्वाल साहब का कुछ बाकी रह गया था, यदि ही इज कंफर्टेबल। हाँ, ग्वाल ग्वाल साहब सुन पा रहे हो हाँ, तो यदि। हाँ। तो उसके बाद मैं कुछ 2-5 मिनट में कुछ बताऊंगा फिर। और जी जी। अच्छा, ग्वाल साहब को कुछ देखते हमारे हैं। कार्यक्रम में मितुल प्रदीप जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कार्यक्रम में एक वेरी बार गुड। बड़े महत्वपूर्ण, तो यदि वो भी अपनी बात रखना चाहेंगी तो स्वागत है आपका, आपका मैं स्वागत है उनको आप। भी लिंक भेजा था कल मैंने। जी जी। और मित्तल जी, मित्तल जी सुन रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते। मैं एक दो वीडियो बंद करके बैठी हूँ। वीडियो बंद कर दिए, मुंह चालू रखिए। आपने एक छोटी सी कविता बना डालिए जब तक, यदि इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ ओके, अदरवाइज एक दो बात स्पीकर आ जाए उसके बाद एक कविता सुना दीजिएगा, जैसा अच्छा, आप, कवि आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है, कोई रेडी कविता नहीं है, कोई बापू की कविता सुना दूंगी। या सुना दीजिएगा। ठीक है, हाँ, जी तब जी तक हम जी, लोग आप मुझे ग्वाल बताइए। साहब को। अब मैं या मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। मैं अनम्यूट करके जब होगा तब करूंगी, अभी म्यूट कर देती हूँ। या और ग्वाल साहब जी। को यदि सुन लेते हैं तब तक। ग्वाल साहब हमें लगता है कि लॉग आउट कर गए हैं, उनको भी एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फिर से जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे बीच में हम्म, वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं। वीरेंद्र कुमार ठक्कर हम्म, साहब आरटीआई रिसोर्स पर्सन उत्तराखंड के, और विधि मामलों के काफ़ी जानकारी है। तो उनके पास तो एक अच्छा खासा डेटाबेस रहता है जिसमें वो सारी जानकारी एक तरह से संकलित करके रखते हैं कि कहाँ कैसे चार्जेज, जस्टिस जो भी हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य जस्टिस के ऊपर कहाँ कहाँ कैसे लोगों ने आरोप लगाए, कहाँ क्या उनकी जांचें हुई या कुछ इस तरह से। हालांकि जांच वांच तो इतनी आसानी से होती नहीं है, जिस तरह से बताया है, वो उनके विरुद्ध कार्यवाही करवाना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन कैसे केसेस कब कब आए, कैसे आए, और उन पे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चर्चाएं हुई, और विशेष तौर पे लोअर जुडिशरी में क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब यदि सुन पा रहे हैं तो वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। जी नमस्ते। जी जी, नमस्कार जी। जी ये जब से ये केस चर्चा में आया है उसके बाद काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है, और जैसा मैंने पिछले मीटिंग में कहा था कि जुडिशियरी की जो इमेज है एक ऑल टाइम लो हो गई है। कानूनी प्रावधान यदि हम देखें तो 1850 में एक जजेस प्रोटेक्शन एक्ट था। 1850 में सिंगल सेक्शन, एक ही सेक्शन का छोटा सा एक्ट है। उसमें यह है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में उनको इम्यूनिटी दी गई है। अब सिविल इम्यूनिटी और क्रिमिनल इम्यूनिटी ये दोनों अलग अलग है। सिविल सूट में इम्यूनिटी तो संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ही है कि सिविल केस भी उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए सेक्शन 80 है जिसमें 60 दिन का नोटिस सीपीसी में पहले देना पड़ता है। क्रिमिनल इम्यूनिटी जो दी उसके अलावा, जैसे अभी जस्टिस रामास्वामी केस की चर्चा हुई कि ये जो इम्पीचमेंट के जो भी प्रावधान है इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड अनवर्केबल, क्योंकि अब तक पिछले 75 साल में भारत में किसी का इम्पीचमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये जो प्रावधान है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और कभी भी किसी को इम्पीचमेंट से हटाया नहीं जा सका। हाँ, 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं। सीबीआई ने, ईडी ने रिटायरमेंट के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी ऐसा केस हुआ है कि जब सबूत है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि अब 800 एमपीज को लिखना बड़ा मुश्किल होता है कि कम से कम 50 लोग पहले इम्पीचमेंट का मोशन प्रस्तुत करें, उसके बाद फिर उसमें संसद में बहुमति से हो, फिर उसके अलावा उसको अपने डिफेंस का मौका होता है जज को, चाहे तो अपना वकील भी रख सकता है, वो लीगल एडवाइजर, जैसे कि इसमें भी हुआ अभी है हाईकोर्ट जज के केस में। लेकिन पता चला है कि इन्होंने शपथ विधि ले लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट जाके। तो
ये जो इम्पीचमेंट का प्रावधान है ये बिल्कुल ही अनवर्केबल है, और खुद सीबीआई और ईडी के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि सब कुछ सबूत हाथ में आ जाने के बाद भी वो रिटायरमेंट के बाद ही अरेस्ट कर पाते हैं, सिटिंग जज को नहीं कर पाते हैं। जस्टिस कर्णन का केस भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उन्होंने, या जो कास्ट। और अब कुछ लोग जस्टिस कर्णन के फेवर में भी आ रहे हैं, जबकि सजा उन्होंने 6 महीने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भुगत ली। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह भी प्रावधान है कि जजेस कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देयर ओन कोर्ट। जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए स्वयं के कोर्ट का ये सजा की जा सकती है, और इसलिए जो जजेस इस तरह से कैश निकलती है या ये, तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मुकदमा चलाया जा सकता है कि इन्होंने जुडिशियरी की वैल्यू गिरा दी है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वैल्यू गिरा दी है, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे रेट गिरा दी है, ये भी एक कंट्रोवर्सी इसमें होती है। दूसरा ये कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, एक कानून और बनाया गया है कि इसमें जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी किस तरह से होगी। बत्ते बत्ते तो खैर ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, उसका अलग से एक्ट है, पार्लियामेंट करती है पास। लेकिन जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है इसमें भी प्रक्रिया दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी आगे बढ़कर अब ये भी प्रावधान कर दिया है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकती विदाउट सेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस। प्रॉपर्टी वॉपर्टी तो भूल जाइए, वो तो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका 81J में आता है, कोई राइट नहीं है। और 783 जजेस जो है इन्होंने संपत्ति की घोषणा करने से मना कर दिया, घोषणा नहीं की है। तो ये हाल है इनके एसेट्स का कि हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स या एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम है या नहीं है। और फिर जो रूल मेकिंग पावर्स होते हैं इसमें भी तरह तरह की मनमानी होती है, और अक्सर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलते हैं। जैसा पिछले बार मैंने बताया था कि इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, कि एक अल्टरनेटिव जुडिशियरी में लोगों का भरोसा अंडरवर्ल्ड में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से काम ज़्यादा फास्ट होता है, कोर्ट में तो और ज़्यादा बड़े बड़े गुंडे बैठे हैं। तो इस तरह से एक जो धारणा बनते जा रही लोगों की, इससे जुडिशियरी में विश्वास लोगों का घटता जा रहा है। और अब तो 13 अप्रैल को, आई थिंक 13 या 14 अप्रैल को ये है, रिटायरमेंट है वर्तमान चीफ जस्टिस का। उसके बाद मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा चैलेंजेस रहेगी आने वाले जजेस के लिए जुडिशियरी की इमेज रिस्टोर करने की। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों ने जो हड़ताल की कि वी आर नॉट ए डस्टबिन, कि जजेस को जो इस तरह से यहाँ पे भेजा जा रहा है। संविधान में दिक्कत ये है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के जज को केवल ट्रांसफर कर सकता है, जुडिशियल कार्य से विरत रहने के लिए कह सकता है चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और लेकिन स्वयं उनको इस तरह के पावर नहीं होते हैं। और फिर कुछ काम है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव है या जो राष्ट्रपति है या संसद है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। और इंडिपेंडेंस के नाम पे जो मनमानी चल रही आ रही है उसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो गई है। संविधान में संशोधन करते एनजेएसी वाला था, 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, आधे से ज़्यादा असेंबली ने रेटिफाई कर दिया। उसके बाद भी संविधान संशोधन भी निरस्त कर दिया गया, एनजेएसी एक्ट को भी निरस्त कर दिया गया। संविधान बदलने का भी अधिकार संसद को है या नहीं है ये भी पता नहीं। एक संविधान बदलने के लिए एक रिव्यू के लिए कमीशन 2002 में बना था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर, और 50 साल का जो वर्किंग है संविधान का, इसका रिव्यू किया गया था। लेकिन उसके बाद उसमें भी कुछ आगे प्रगति हुई नहीं, बस रिपोर्ट आ गई और कोई उस पर कार्रवाई हुई नहीं। तो इस तरह के भी प्रावधान है कि संविधान को क्या बदला जा सकता है क्या, या जुडिशियरी को कैसे कंट्रोल में लाए, या क्या एग्जाम रखी जाए, या किस तरह से किया जाए ताकि ये कोलेजियम सिस्टम जो है, जो एक तरह का नेपोटिज्म का अड्डा बन गया है, और इसकी वजह से जो मेरिटोरियस जो एडवोकेट होते हैं वो भी जज बनने से हेसिटेट करते हैं। और कभी कभी क्योंकि वकालत में वैसे भी पैसा ज़्यादा है, अब ये भी कंट्रोवर्सी हो गई कि वकालत में पैसा ज़्यादा है कि जुडिशियरी में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी पे जीने वाले तो कुछ लोग लगते नहीं है। तो फिर ये जो फीस ली जाती है, क्या वकीलों के माध्यम से पैसा पहुंचाया जाता है जजेस को, और दे आर एक्टिंग एज कॉन्ड्यूइट्स। तो ये सब सवाल उठते रहे हैं, और अब ये इस पर जो चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी पहल है
कि इस पर बहस हो, आम लोगों में भी जागरूकता बढ़े। और इसमें हालांकि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में जजेस भी है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। और हम यदि सेक्शन 21 की डेफिनेशन देखें आईपीसी की, तो मुकाबले जो पीसीए में जो डेफिनेशन है, इसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि इसमें जजेस, वाइस चांसलर, ये सब भी इंक्लूड कर लिए गए हैं जो पहले उसमें नहीं थे आईपीसी में। तो ये एक इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अब सेक्शन 17 डाल दिया गया है, सेक्शन 17A, सेक्शन 19। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी इस तरह से अलग से सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के प्रावधान डाल दिए गए, मतलब बिसाइड्स सीआरपीसी 197 के पहले ये तो प्रावधान थे ही। हालांकि उसका टेक्निकली ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान कर दिया गया कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं दिया गया 90 दिन तक, तो मान लिया जाता है कि सैंक्शन मिल गया एंड द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कैन गो अहेड विद द प्रोसिक्यूशन। तो ये जो और एक असम्पशन है कि भाई ये जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के रैंक के लोगों के लिए ये सैंक्शन जरूरी है, क्योंकि ये माना जाता है कि लोअर पोस्ट पे करप्शन कम होता है, हायर पोस्ट पे जो करप्शन है ये कम होता है। ये भी मेरे ख्याल से एक मान्यता है, एक धारणा है, एक अंधविश्वास है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी पानी की तरह ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे गुंडागर्दी करते हुए सचिव देखे हैं कि जो टारगेट सेट करते हैं कि भाई इतने करोड़ की ग्रांट देंगे और इतने करोड़ आपको रिटर्न करना है, अदरवाइज व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द डिपार्टमेंट। कंट्रीब्यूशन मतलब जो हम दे रहे हैं आपको ग्रांट्स, उसमें से हमारा हिस्सा क्या है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। यदि नहीं है तो बोलते देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ योर डिपार्टमेंट। टारगेट सेट करते हैं। आज मैं उनके बारे में कल मैंने बताया, उसको सीधा उठा के बाहर फेंक दो सिस्टम से। इतना खतरनाक ये किरण जी, ये बताएं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जैसे ऑफ करप्शन हो चुका कॉलेजियम है। को लेकर के प्रश्न खड़े हो हाँ रहे जी। हैं, और तो एक तरह की इनकी इंडिपेंडेंसी जो है, स्वतंत्रता हम्म। न्यायपालिका की, एक तरह से इस पे अंकुश लग जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इसकी मतलब क्या होगा कि मतलब जब कॉलेजियम सिस्टम मान लीजिए खत्म हो जाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पार्टियों के हाथ में ये एक तरह से कंट्रोल इनका आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो एनजेएसी का प्रस्ताव था उसमें यह था कि चीफ जस्टिस और मतलब 2 सीनियर मोस्ट जजेस तो रहेंगे, प्लस उसमें ये कि दो जो है नॉमिनेटेड पर्सन रहेंगे और एक मिनिस्टर। तो इस तरह से मतलब बैलेंस बनाया गया था। उसमें ये नहीं था कि जैसे अभी 5 लोग जुडिशियरी से ही है, तो उसमें भी चीफ जस्टिस को और इनको मतलब 2 जजेस को तो रखा ही गया है। तो ऐसा नहीं है कि एनजेएसी यदि आ जाए तो जुडिशियरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। हाँ, मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात हो सकती है कि 5 है उसमें से 3 लोग दूसरे हैं, 2 जुडिशियरी का 2 ही है, तो फिर जजेस माइनॉरिटी में आ गए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये कि 5 यदि है तो उसमें ऐसा नहीं है हम कह सकते कि क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जुडिशियरी इज अपॉइंटिंग इटसेल्फ, जजेस ही जजेस की नियुक्ति करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही है, और कुछ बातों में भारत यूनिक है, उसमें ये भी एक यूनिक है तो कि जजेस ही ये जजेस की बताएं नियुक्ति करते हैं और बाकी पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। किरण जी, अमेरिकन हाँ, सिस्टम में और इंग्लिश मतलब इनमें किस तरह से वहां पर नियुक्त ये कि करते जो हैं जज? एग्जीक्यूटिव है, हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटिव है कि जज, वैसे संविधान में लिखा गया है कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, अंडर हिज वारंट एंड सील। तो नियुक्ति तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन अब इसमें भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है कि जब कोलेजियम ने रिकमेंड कर दिया और उसके बाद भी फिर गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, या फिर कुछ लोग बिना अपॉइंट हुए ही रिटायर हो जाते हैं, तो ये तरह का भी देखने मिलता है। बाकी देशों में जहाँ तक ऐसी व्यवस्था है तो उसमें पार्लियामेंट के अधिनियम को जजेस क्वैश कर सकते हैं क्या, इस बारे में भी अमेरिका में इंग्लैंड में अलग अलग कानून है। भारत में यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के नाम पे ऐसा कर दिया है कि संसद के बनाए हुए अधिनियम को ही ये निरस्त कर देते हैं, या ये कर देते हैं जैसे एनजेएसी में किया गया है, रोक लगा देते हैं। तो ये जो देखा गया है, तो फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का जो ब्रिटिश प्रिंसिपल था या ब्रिटिश कॉमन लॉ जिस पर हमारा जुडिशियल सिस्टम आधारित है, तो वो अलग है। दूसरा है जो मैक्स वेबर की जो फिलोसॉफी थी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों में आपस में इंडिपेंडेंस बना रहे। तो ये जो बैलेंस है ये कहीं पे गड़बड़ा जाता है, और हमको ये देखने मिलता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे पिछले बार आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था
कि जो बुलडोजर जस्टिस के नाम से काम चल रहा है कि जजेस की वजह से जो है देश की सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए बुलडोजर जस्टिस और ये सिस्टम आ गया कि चलो सरकार खुद ही, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, और कोर्ट में तो ऐसा चल रहा है कि रेट चल रहा है, भाई 1 करोड़ मिल गया तो लेके छोड़ दिया, आतंकवादी को भी छोड़ दिया, किसी को भी जमानत पे छोड़ दिया। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए इस तरह के सिस्टम आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार का भी जुडिशियरी पर भरोसा दिन ब दिन उठता जा रहा है। और ये जो केस हाईलाइट हो गया इसके बाद तो पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिक का भी मतलब खुल के लोग सामने आने लग गए हैं, क्योंकि अब जब लाखों करोड़ों लोग इस तरह से यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं तो फिर कोर्ट भी क्या कर लेगा। तो मुझे लगता है कि देयर इज नीड टू सेट वन एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जुडिशियरी को जरूरत है। और यदि इसमें पहल की जाए, जैसे इस बार भी 1 हफ्ता पहले लिपापोती की कोशिश की गई, उसके बाद फिर ये किया, वकीलों ने भी काफी आवाज उठाया, उसके बाद भी जैसे जबरदस्ती वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, शपथ विधि भी हो गया, अब तो न्यायिक कार्य से विरत रहने का तो शायद कहा गया है, वो भी पता नहीं इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है। तो जबकि ऐसे में जो स्वाभिमानी व्यक्ति है खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा पिछले बार हुआ था। एक आध दो बार इम्पीचमेंट के जब प्रस्ताव आए थे तो फिर उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली इम्पीचमेंट हो जाएगा तो इसमें जुडिशियरी की ओवरऑल बदनामी होगी, ए बैड ट्रेंड में भी सेट, और इसलिए जजेस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, या कभी कभी प्रोसीडिंग चलते रहती उसी दौरान रिटायर भी हो जाते क्योंकि ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहता, जबकि जो प्रोसीजर है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी होती है। तो उसकी वजह से जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है मुझे तो लगता है ये भी अनवर्केबल है, जैसे कि इम्पीचमेंट के प्रावधान अनवर्केबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। तो उसी तरह से जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है बस ये लोअर जुडिशियरी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है बस वही है, और सुप्रीम कोर्ट, निचले हाई स्तर, हाई कोर्ट, निचले स्तर के, सुप्रीम बस वही अदालतों में वही हो उतना जाता है, उतना ही कर सकते हैं। हाँ, या उतना ही हो जैसे जाता है। राठौर साहब, जैसे इन्होंने बताया, ग्वाल साहब हमारे हाँ, बीच में जुड़े हुए हैं, उनको यस हम यस सुनेंगे। जी। उन्होंने बताया था अपनी समस्या के बारे में को, तो उनको मतलब हम्म, टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, हम्म, हटा दिया गया, मतलब इस तरह से जो इजिली बलि का बकरा जिसे अपन बोलते हाँ, हैं बलि का कॉमन, बकरा, और फिर बन जो जाए तो उनको उनको बना दो बकरा, बाकी जो ऊपर वाले हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे कुछ भी और करो, जो मतलब करप्शन इतना करते आसान हैं उनका भी बात बड़ा है। सिंपल हाई कोर्ट प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट की तो कि भाई बिल्कुल रिश्वत लगभग लेते असंभव हैं, के बराबर है। यस, कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाए तो रिश्वत देके छूट जाओ। बस ये कि हाई कोर्ट में थोड़ा हजारों में, ये इसमें लोअर कोर्ट में हजारों में चलता है, हाई कोर्ट में लाखों में चलता है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों में ये चलता है। वीरेंद्र तो जी, बस अब रेट तो अलग अलग है। ये तो पूरे सिस्टम में ही चल रहा है एक्चुअली, जो पूरा कार्यवाही सिस्टम में होती है ये आम मतलब है जनता कि के एक पास। दिमाग की तरह जो है भ्रष्टाचार ने पूरी जुडिशियरी को भी खा लिया और इसकी वजह से पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया और एकदम एनआरकी जैसा सिस्टम इंडिया में हो गया है। हो तो गया यही है, मुझे बिल्कुल सही कहना है। था। धन्यवाद। जी जी। हमारे बीच में प्रवीण जी, ग्वाल साहब हमारे बीच में Yes. जुड़े हुए हैं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी तो हम उनको इनवाइट करें। Yes. श्री प्रभाकर ग्वाल साहब हमारे बीच में, प्लीज अपने आप को अपनी बात रखें जी। हाँ सर जी, पुनः एक बार आप सबको नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ हाँ, अभी आएंगे सर, हम लोग गंतव्य में पहुंचने हैं, इधर खड़े हैं वैसे। तो उसमें जहां तक भ्रष्टाचार की बात है सर, उसको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए उसके समाधान पर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग संबंधित बारों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, जिला तहसील बार हो, अपने तरफ से छोटा छोटा पहल करना पड़ेगा कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार को रोकेंगे बोल के। और जब तक जो जज शिकायत कर रहा है, नहीं बदमाशी कर रहा है, चाहे पैसे में लेके बदमाशी करे या अपने पक्षपातपूर्ण आचरण से बदमाशी करे, उसके लिए लिखित में उसके उच्च अधिकारियों को देना जरूरी है, और तभी सिस्टम सुधरता है, अच्छे से न्यायाधीश लोग काम करते हैं। और जैसे अभी इन हाउस प्रोसीजर में अपने यशवंत वर्मा जी का कार्यवाही चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई न्यायपूर्ण कार्यवाही हो। तो इन बातों को भी हमको ध्यान रखना है। हम लोग लोकल स्तर में जितना जागरूक रहेंगे, उस सिस्टम में, उस न्यायालय का परिसर, उस न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, बार बेंच, सब एक न्यायप्रिय व्यवस्था बनाने के लिए, लोकल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ऐसे ऐसे जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमने तो छत्तीसगढ़ में एक निष्पक्ष संपूर्ण न्याय व्यवस्था को लेकर
और हर तहसील और जिला स्तर में रेसिडेंशियल लॉ लाइब्रेरी और लॉ हॉस्टल बनाने की भी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ही कर रहे हैं। और उस पर लगभग 14 राज्य के वकील लोग संगठित होकर और समाज में जो भी न्यायिक व्यवस्था बनाने में रुचि रखता है उसका भी सहयोग ले रहे हैं, उसको भी दिशा निर्देश ले रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस संबंध में मैं अपने प्रवीण साहब को एक पम्फलेट भी दे दूंगा कि हम यह छत्तीसगढ़ में क्या क्या कार्रवाई कैसे कैसे कर रहे हैं मुल्क के। और हर हालत में हमको कॉलेजियम को जितना जल्दी खत्म करना ये जरूरी है। नहीं तो भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन 90% भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को भी खत्म करना पड़ेगा। और ये कॉलेजियम ही हमारे भ्रष्टाचार की जन्मभूमि है, जन्म माता है, जो जितना गाली देना है गाली दे सकते हैं। तो ऐसा स्थिति है। तो इन बातों फिर आगे भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, इसमें जगह जगह फिजिकल बैठक भी लेना जरूरी है। फिजिकल बैठक लेते हैं तो जज लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। 6 महीने तक फिर कोई भ्रष्टाचार की कोई सोचता भी नहीं है। तो हर जिला स्तर में, तहसील स्तर में वकीलों के बीच में जो जुडिशरी से जुड़ा है उन व्यक्तियों के बीच में भ्रष्टाचार पर छोटे छोटे व्याख्यान, छोटे छोटे कार्यक्रम ये होना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही है सर। मैं जो भी हम लोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अच्छे लोगों को जज बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हॉस्टल और लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसकी एक पम्फलेट जो छोटा सा है मैं प्रवीण सर को दे दूंगा, तो आप सभी लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। इतना ही है सर, बाकी आप आगे कंटिन्यू करते रहिए। शिवानंद, I will take 2 minutes. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जहाँ तक आपने छत्तीसगढ़ की मूवमेंट की बात की, वी आर देयर विद यू। और जरूरत पड़ेगी जैसे आगे जैसे हम लोग बैठ के बात करेंगे, जहाँ जहाँ जरूर होगा हम लोग उसमें आपके साथ में जोड़ेंगे भी। सही जी सर, जी सर। दिस इज या। अब दूसरी बात जो आपने आगे कहा कि जजेस जो करप्शन की बात आ रही है, मेन मुद्दा तो जब करप्शन ऑफ जुडिशरी। तो ये आज भारत में करप्शन कहाँ पर नहीं है। हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 45% हमारे जो लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। जजेस की बात करें तो अभी ये जो दिल्ली की जो बात की है, कॉलेजियम और नॉन कॉलेजियम, ये दोनों के जो मेरे को तो सीधा पर्सनल मेरा ओपिनियन है ये कि दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, क्योंकि कॉलेजियम को निशाना बनाया है। कि सरकार को लगता है कि कॉलेजियम यदि जजेस अपॉइंट करते हैं तो हमारी बात वहां जाती नहीं है, हम हमारे हिसाब से काम कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि हम जज को अपॉइंट करें और जजेस चाहते हैं कि हम अपॉइंट करें। तो दैट इज द कॉलेजियम। तो हम कॉलेजियम के ऊपर ही एक विषय है कि जिसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कि दिल्ली की जो घटना, करोड़ों रुपया मिला और जल गया, आज उस जगह को सीज नहीं किया गया। पुलिस एक्ट क्या कह रहा है, पुलिस की यदि जरूरत इसमें होता तो जो क्राइम सीन, ये तो क्राइम सीन माना जाएगा जहाँ करोड़ उस डिस्टर्ब हो रहा है। किसी का माइक देखिए आप, उमा शंकर, सॉरी ये शिवानंद भाई। तो जहां तक क्राइम सीन की बात आती है, दिवाकर जी के यहाँ वो जो गाड़ी में बैठे हैं, तो कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं उसका। अच्छा गाड़ी में, ओके ठीक है। तो प्रभाकर जी, इसमें हमारा सीधा सीधा ये आरोप है कि ये कहीं सरकार की खुद की तो चाल नहीं कि भाई हम जजों को बदनाम करें, करप्शन का लेबल लगा दे करोड़ों रुपया की कि उनके घर से मिल रहा है, ये है वो है, और आपस के बाद फिर बोलेंगे कि भाई ये जजेस अपॉइंट नहीं करेंगे, जज को अपॉइंट हम लोग करेंगे, कॉलेजियम को खत्म करो। कहीं ये साजिश तो नहीं है? ये भी एक नहीं सर, इसमें एक निवेदन है ना सर, जजों की नियुक्ति सरकार के भी हाथ में न रहे ना भाई। जैसे IAS IPS, हाँ IAS IPS में भी तो लोगों को पैसे देके भर्ती हो रहे हैं। नहीं वो हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कम हो रहे हैं ना सर जी। तो हम विस्तृत बात बैठेंगे तब होगा ना सर जी। तो सरकार सब अपने हाथ को कर देगा। जी हमको जरूरत है इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, उसके ऊपर बात करना है। 100% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में जाना चाहिए। उसमें जजेस भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे। हाँ वो सब है, लेकिन फिलहाल जो नियुक्ति में विविधता आएगी तो फिर भ्रष्टाचार रुकेगा ना सर जी। अब नियुक्ति में विविधता नहीं है। नहीं, उसमें अभी क्या हो रहा है कि आपका 4 नाम तय करना है तो बोले 2 मेरे होंगे 2 आपके होंगे, ये हिसाब से अभी हो रहा है। नहीं, जैसे PSC वगैरह में भर्ती होती है उसी स्टाइल में करना पड़ेगा, तभी रुकेगा। मुझे कुछ कभी जी या
भाई साहब, एसके राय कौन अपनी है क्या इधर? आप देखे शिवानंद भाई, कौन? एसके राय, उनका मैसेज 2 बार आया कि 2 मिनट चाहिए। राय और ये सज्जन भी बोल रहे थे आप अभी। अपने आप को अनम्यूट करके बोले। एडवोकेट सरदार मुकेश सैनी जी है, शायद कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, मगर टाइम फिक्स कर दीजिएगा, नहीं तो फिर टाइम खराब हो जाएगा। हम्म। एसके राय इज आल्सो देयर, या सैनी जी। जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जो आपने सारी बात, मैंने मीटिंग सुनी, गौरव सिंघल साहब ने मुझे बताया। मैं भी पिछले 20 बरस से इस पे काम कर रहा हूँ। सन 2000 से अब तक काम कर रहा हूँ। अनेकों अवार्ड मिले हैं, अनेकों चीजें ऐसी हैं मेरे पास जो कि इससे रिलेटेड है, और अनेकों केस भी हैं जो मैंने कोर्ट में जज भ्रष्टाचार होते हुए वीडियो भी बनाई, और उसका शिकार मुझे इस रूप में होना पड़ा कि मेरे खिलाफ एक फर्जी झूठी एफआईआर हुई, और फर्जी झूठी एफआईआर करने के बाद मेरा निलंबन भी करा दिया गया। मैंने 2 जजों के खिलाफ रेप का और मर्डर का केस चालू किया था, कंप्लेंट की। तो उसमें मुझे प्रताड़ना ये झेलनी पड़ी कि मेरे खिलाफ एक मामला ऐसा बनाया गया और मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई, जेल जाने से रह गया हूँ। बाकी निलंबन यहाँ से हुआ बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई। तो एक ये भी है कि हम जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें सरकार कोई प्रोटेक्शन नहीं देती, हमें जजेज कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, हमें कोई आम पब्लिक प्रोटेक्शन नहीं देती। हमें फिर अपने ही हथियारों से लड़ना पड़ता है, हमें अपने साधनों से लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आली संस्था से जुड़ा हूं, जो मुझे कभी कभी बुलाते हैं, और उन लोगों ने ये कहा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आवाज उठानी हो तो जैसे कर्नल साहब के दो जजों को जब मेरी कंप्लेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया गया और उन्हें एक अटैचमेंट कर दिया गया दूसरी जगह। इस तरह से जो हम लोकल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लोकल लेवल पे लड़ रहे हैं, जो अभी मुझसे पहले सज्जन कहते हैं लोकल लेवल पे लड़ रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पे क्या हुआ, जो भ्रष्ट अधिवक्ता हैं वो भी साथ में हो जाते हैं उन जजों के पिट। तो आखिर लड़ाई वो कैसे लड़ी जाए? वो लड़ाई जब तक नहीं लड़ी जाएगी, जहां तक मेरा अपन सोचना है कि जब तक हम लोग धरातल स्तर पर जिस प्रकार के अन्य आंदोलन करते हैं, इस प्रकार हम जुडिशरी के खिलाफ, जुडिशरी में सुधारों के खिलाफ एक आंदोलन के और आम पब्लिक जुड़े, उससे हम प्रमाण के साथ जुड़े, और हमारा लोकल लेवल पे पूरे जैसे अनेकों संगठन है, अनेकों राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जिनके पास जनशक्ति है सबसे ज्यादा, और जिसके पास जनशक्ति सबसे ज्यादा है उसकी बात सुनी जाती है, जुडिशल को भी झुका लेते हैं। आज आप ये देखें कि जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार की कृपा पे यहाँ पर चुने जाते हैं, उनकी जजों से सेटिंग होती है, और वो बताते हैं अंदर जाके कि ये वकील साहब खराब है, ये वकील साहब अच्छे, और वो चरित्र हनन करते हैं। जब वो चरित्र हनन की कार्रवाई करते हैं तो जज भी उनके साथ लगे होते हैं। मेरे सामने एक 12 साल की लड़की का रेप के बाद उसकी गवाही चल रही थी, गवाही के बीच में से बाबू बोला कि भाई चाय मंगाओ, बिस्कुट मंगाओ, और कटघरे में से मुलजिम को निकाल के वो चाय बिस्कुट लेके आया। जब चाय बिस्कुट लेके आया, मैंने इसकी एक वीडियो रील बना ली। मैंने एक वीडियो रील बनाई, छोटी सी वीडियो रील बनाई थी। वो डर गए, सारे बोले कि आपने वीडियो रील क्यों बनाई है? मैंने कि तुम मेरे सामने मुलजिम से ही चाय बिस्कुट मंगा के खा रहे हो, तो आप न्याय क्या दोगे? और जज साहब बैठे थोड़े अंदर। जब जज साहब ने ये बात सुनी, जज साहब वो बोले कि आपकी शिकायत जज साहब से कर देंगे। मैंने की कर दो शिकायत, मैं तुम्हारी ये वीडियो मैं सुप्रीम कोर्ट भेज दूंगा कि तुम मुलजिम कटघरे में से मुलजिम को बुला के और तुमने उनसे चाय बिस्कुट और समोसे मंगा। तो वो डर गए, उससे डर गए, तो उन्होंने मेरे खिलाफ क्या किया कि ये वकीलों को ही आगे कर दिया, भ्रष्ट वकीलों को आगे करके, और मुझे जेल भेजने की तैयारी कर दी, मेरी पेट पे लात मार दी, मेरा निलंबन करा दिया। अब बताइए, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई की हम बात कर रहे हैं मित्रों, जितने सारे मित्र सुन रहे हैं उन सबको निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार हम कैसे लड़ पाएंगे जब तक हमारा धरातल पर एक संगठन नहीं होगा, और संगठन के साथ हमारे पास ऐसे जो फल टाइमर नहीं होंगे, हमारे पास कुछ बुद्धिजीवी, हमें क्या वकील ही नहीं चाहिए। आज अनेकों वकील मेरे साथ इस प्रकार के हैं। एडीजीपी साहब विजेंद्र सिंह साहब हैं, सलीम अहमद खान एक ईमानदार जज हैं, श्याम शंकर उपाध्याय एक जज साहब हैं, नवल सिंह मित्र एक जज साहब हैं, जो मैं अलीगढ़ पर SMS रूल ऑफ लॉ इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी अलीगढ़ से चला रहा हूँ 20 बरस से, लेकिन उसका रिजल्ट मेरे सामने है।
और मैं आज भी 25 साल की वकालत में 90% रिजल्ट देता हूँ, जो मेरा ज्ञान, मेरा अल्प ज्ञान है, लेकिन 90% रिजल्ट देने के बाद हर तरह से मैं नायक की भूमिका में रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब मेरे साथ उन्होंने ये हाल कर दी, तो बताइए फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठेगी कैसे? कौन उठाएगा? सरकार तो चाहती नहीं। और जितने जितने सिस्टम आपको ये सरकार के दिख रहे हैं कि इस समय जो सरकार ने अपना तंत्र बनाया है, उस तंत्र के अंतर्गत आप देखें कि उस तंत्र में सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद हो। तो सरकार आखिर चाहती नहीं है, तो हमें वो जो जनता का, हम सबसे पहले जो संविधान सैनी पढ़ते हैं, सैनी जनता द्वारा। सैनी साहब एक जी, मिनट, मैं ये जानना चाह रहा था, आप क्या एडीपीओ थे वहां पर? मैं ना मैं प्रैक्टिशनर वकील हूँ, सोशल केवल क्रिमिनल का छोटा सा तो वकील आपको हूँ। आपको इन्होंने निलंबन करवा दिया बार एसोसिएशन से? बार मेरा अलीगढ़ बार एसोसिएशन से निलंबन भी करा दिया, और बिना मेरे बगैर सुने हुए ठीक मेरा है। निलंबन हुआ। मैं मुझे एक, उन्होंने हाँ, हम एक चीज जानना चाह रहे थे। तो आप जो बोल रहे थे वीडियो वगैरह आपने बनाया था वो चाय बिस्किट वाला, वो वीडियो अभी भी आपके पास है? वो शायद मिल सकता है मेरे पास, और उसके अलावा भी मेरे पास ऐसे ऐसे स्रोत भी हैं कि एक एडीजी साहब, और आपको बताता हूँ मैं शिकार क्या हुआ, उसका कारण भी बताता हूँ मैं आपको। एक जज साहब थे सुनील सिंह साहब, वो दलित समाज से संबंधित, तो उनके लिए एक शराब कांड हुआ, इसमें लगभग 100 लोग मरे। मैं उस केस की पैरवी कर रहा था। जब मैं उस केस की पैरवी कर रहा था, तो मुझे कई इस समुदाय के बोले कि भाई आप इस केस की पैरवी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा वो जनहित का मुद्दा है, और मैं इसके लिए अलीगढ़ में मशहूर हूं इसके लिए। तो मैंने जब वो मामला उठाया, मुझे कई वकीलों ने डराया, जजों ने डराया, मैं उसकी पैरवी नहीं रुका। एक कारण नंबर एडीजी साहब से दूसरे डीजीसी ने कहा कि भाई आप फलां केस में पैरवी करके आओ। बोले मैं उस ढेड़ा चमरा की कोर्ट में नहीं जाऊं। वो रिकॉर्ड जो थी, और उन्होंने कही भाई सरकार के केस में क्यों नहीं जाओगे जब आप सरकारी वकील? तो बोले कि मैं सरकार की माँ की और बहन की। ये वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, आपको भेज सकता हूँ। मैंने उसकी गेट का संज्ञान लिया, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उसको मैंने आगे सर्कुलेट किया, और उसके आधार पर एक कंप्लेंट अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक भेज, और मारता हूँ जितने कानून से संबंधित अधिकारी और मंत्रालय वहां भेज। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पर ये प्रेशर आया कि आप इस केस से हट जाइए। मैंने कहा ना तो मैं जाति से चमार, ना मैं ढेड़ा हूं, लेकिन मुझे जब जुडिशरी में बैठे लोग जब इस प्रकार की जातिवादी भावना रखते हैं, तो आखिर हमें न्याय मिलेगा कैसे? खैर वो जज साहब ट्रांसफर होकर चले गए, जज साहब से कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह की कई घटना मैंने की जो ठीक है। भ्रष्टाचार के अब खिलाफ है। देखिए ठीक है समाज मुकेश जी, जी। प्रवीण जी, या आपका जो संगठन है, आप एक इनकी मिनट मेरे बातों को को बात करने दीजिए। नहीं, प्रूव मेरे से कीजिए। इनकी बात हुई है, फोन पे भी बात हुई है, और अब अलीगढ़ में हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। ये शायद हो सकता है कि जून एंड में हो, या जो भी तारीख हो। अभी मैंने एक चिट्ठी भी भेज रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उनसे टेलीफोन में मेरी 2 दिन पहले भी बात, काफी लंबी बात हुई है। अभी जो आज उन्होंने बताया जो जो चीजें, वो चीज अभी हमारे ज्ञान में इन्होंने लाया है, हमारे नॉलेज में। वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस इश्यू ऑल्सो। तो अभी आगे हम चले, एस के रॉय साहब को भी सुन लेते हैं। और ये विषय जो कहा, सैनी साहब सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ बिल्कुल। तो आपका ये जो विषय आपने कहा, करप्शन इन जुडिशरी इज वन इश्यू, और हम लोग जो जुडिशियल रिफॉर्म में काम कर रहे हैं वो दूसरा इश्यू है। तो हम तो चाहेंगे कि जब अलीगढ़ में आए तो ये प्रोग्राम दोनों अलग अलग हो, एक साथ में 2 प्रोग्राम, मतलब ऑन सेपरेट प्लेटफॉर्म। यूनिवर्सिटी में जब बात करेंगे तो हम लोग तो वहाँ जुडिशियल रिफॉर्म, एक्सेस टू जस्टिस की बात करेंगे, और अलग प्लेटफॉर्म एक दूसरा किया जाए सोशल एक्टिविस्ट को, जहाँ पे हम लोग अपने जो कहा करप्शन इन जुडिशरी और बाकी के इश्यूज को हम लोग उठाए। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, वहां पे तो डिस्कस करेंगे क्या मॉडलिटीज होगी, और अलग से जो प्रोग्राम आप करेंगे उसमें जुडिशियल रिफॉर्म एंड करप्शन इन जुडिशरी, इसके ऊपर बात करेंगे। वी विल वर्क आउट, जहां तक हो सके तो अप टू सर्टेन लेवल हम लोग उसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर देंगे। ये दोनों चीजें अपन बात कर सकते हैं। या अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, मुकेश जी फिर बात करेंगे। अभी और भी कुछ 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट है, उनको सुन लेते हैं पहले। मिस्टर राय, एस के राय सर। अब मुझे बुला लीजिए प्रवीण जी। हाँ प्रवीण भाई, मित्तल जी, मुझे बुला या लीजिए। अब निकलना है क्या कहीं? नहीं, मैं मित्तुल हूँ।
नहीं मित्तल जी, आप 2 मिनट खाली एस के राय का 2 मिनट सुन लेते हैं, फिर आप आ जाइए। हाँ, क्योंकि मेरा ये खत्म हो जाएगा बैटरी, मेरे पास चार्जर नहीं है। तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए अपना, चलिए। हाँ हाँ, 2 मिनट लगेगी। प्लीज प्लीज। करता है तो हाँ, आप अपना भ्रष्टाचार के इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए खुद ही, और बता दीजिए गाना के बारे में भी, और बताइए। हाँ, सभी को माफी चाहती हूँ, थोड़ा मैं अंदर इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं मितुल प्रदीप हूँ। कवि प्रदीप जी मेरे पिता थे, और उनकी एक हल्की फुल्की सी एक कविता सुना रही हूँ। थोड़ा सा हंसने वाला है, जॉनी वॉकर के ऊपर इसका फिल्माया गया था, और भ्रष्टाचार के ऊपर है, इसीलिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और खाली 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये है, कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। मर मर के हम रोज मेहनत करे, अरे यारों को देखो तिजोरी करे, दिन रात हम तो गुलामी करे। अरे फोकट में ये सांड खेती चरे, धन पे हमारे है सेठों का ताला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। ठीक है, आपने सुना सबने? सुनो, लेकिन सेंस समझ में नहीं आया मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं, और उसका जुडिशियल से, न्याय से, भ्रष्टाचार से क्या संबंध है, ये समझ नहीं आया। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाली, मर मर के हम रोज मेहनत करें, अरे यारों दिन रात हम तो गुलामी करे, और फोकट में ये सांड खेती चरे। मतलब ये भ्रष्टाचार के ऊपर है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन गुलामी करते हैं, धन पे हमारे सेठों का ताला लगा हुआ है। मतलब आज जो चल रहा है ना, उसी बात में है कि बड़े बड़े सेठ हमारा धन लेके हमारे धन पे ताला लगा हुआ है बैंकों मितुल में। जी, इनमें इनका हाँ, कहना है कि इसको जुडिशरी से कैसे रिलेट करेंगे आप? नहीं, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर कहा मैंने। बराबर है, तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा मेहनत करिएगा, और जुडिशरी हाँ, के भ्रष्टाचार को इसमें कहीं ना शामिल करके एक नवी कविता बना दीजिए। ठीक तो इसको पटेल अगली बार हम साहब, लोग इसको सुनेंगे। हाँ पटेल हाँ, साहब की मिस्टर राय का साहब का सुन ले, उनको भी निकलना है। मिस्टर एस के राय, ठीक। 2 मिनट्स टू यू। तो अब भी निकलती हूँ, थैंक यू। या अब इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। जी जी जरूर। मिस्टर राय, या मैंने सैनी जी को सुना है अभी, एडवोकेट सैनी जी, इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर में जो अपने ऊपर जो स्थिति है हमारे सामने रखा है, और इसके पहले प्रशांत भूषण जी के बारे में भी हमारे किसी सज्जन ने बात उठाया था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जुडिशियली तो है ही है, जुडिशियली भी इस देश के कॉरपोरेट जगत की जो घिनौना मानसिकता है उसका शिकार बना हुआ है, और ये कॉरपोरेट जगत भारत की संविधान को प्रभावित करता है। ये कॉरपोरेट जगत देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों को लेके वो अपना ही लोगों को वहां पर बैठा रहा है। ये देश अब आजाद नहीं रहा, ये देश अब संविधान से नहीं चल रहा है। ये देश अडानी, अंबानी जैसे जो कॉरपोरेट है, विदेशी कॉरपोरेट है, उसके द्वारा संचालित है। और आज हम जो बात कर रहे हैं उसी आजादी के नाम से हम लोग गुलाम होके बात कर रहे हैं। हमारी हालत ये हो गई, मैं आपको देखिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। हम आज के डेट में अगर मान लीजिए सैनी जी ने बात किया, इनको ईडी सीबीआई का लोग भेज देंगे आपके घर के अंदर में, और आपके पास में 2 पुड़िया रख देंगे किसी का, बोलेंगे यहां से ये बरामद हुआ है,
अभी हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, प्रीवियस मुख्यमंत्री, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया है। किसी ब्लेम था उसके ऊपर में, प्रायोजित ब्लेम था, उनको रिहा किया। फिर दूसरा केस उसके यहाँ लगा दिया, फिर तीसरा केस लगा दिया, केजरीवाल के यहाँ पर केस लगा दिया। यानी मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, लेकिन ईडी, सीबीआई, दुनियादारी, ये जितनी भी हैं, ये सारे कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। ये इन्हीं के साथ में बल के काम कर रहे हैं। और हम अगर बोलेंगे जुडिशियल ये कोई रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल ये कोई बात कर रहे हैं, वर्मा जी को जो ये दिया गया, घूस दिया गया है, वर्मा जी लिया कि नहीं लिया ये भी हमको आइडिया नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हम ब्लेम तो लगा ही दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब हो क्या रहा है? आपने जो सैनी जी ने कहा है ना कि एक टोटल रिवोल्यूशन होना चाहिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में जो जो गलत एलिमेंट्स आ रहा है वो टोटल रिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर विप्लव की बात होनी चाहिए। अब ये छोटी मोटी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने का। आरटीआई लगा दिए, कुछ करने लगा दिए, ऊंट की मुंह में जीरा है ये आरटीआई दुनियादारी, कुछ नहीं होने वाला। एक पार्टिकुलर आपको जो केस है सैनी जी, अगर मान लीजिए फर्स्ट जस्टिस आपके केस को ले लिया, आपको जिका दिया, क्या होने वाला? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए तो टोटल रिफॉर्मेशन की जरूरत है, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। हम आमूल चूल परिवर्तन कैसे करें, किस तरीके से कॉल दे सकें, किस तरीके से बात हो सके, वो बात यहाँ होनी चाहिए। तो हम तन मन धन से जो है समर्पण भाव से, अभी मेरा भी 70 साल की एज हो गया है, 70 ईयर की हो गया। 90 साल के लोग जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन करें तो कुछ देश के लिए। हम भी तैयार हैं। मैं इतनी बात कह के अपना इतना लूंगा। प्रिय नमस्कार। नमस्कार, आप लोगों ने बात समय पूरी दिया। कर दीजिए। थैंक यू राज साहब। ओके प्रवीण भाई, मैं बोलना चाहता हूँ। प्रवीण भाई, या सैनी जी। प्रवीण भाई, हाँ बताइए। जलील अहमद साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं मुंबई से